इसी भाई यहाँ पे आया और तुम देखो ईडब्ल्यूसी की वीडियो भाई, तुम लोग जो देख रहे हो ना, जब भी मैं मिसिंग हूँ, मैं मिसिंग पार्ट बहुत जल्दी उसका भी आ भी जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। मैं क्यों मिसिंग हूँ सब पता चलेगा आपको, ठीक है, अगर आप सीरीज फॉलो कर रहे हो तो ईडब्ल्यूसी की। भाई वीडियो भाई होता है एक दिन में भाई, दोनों एडिटर मिल गए हमारे, एडिटर प्लस जो बोलो, हमारे आदि और लोकेश मिल गए भाई, पूरा वीडियो निपटाते हैं यार। सैल्यूट टू देम। आई मीन ऑफ कोर्स स्वराज आल्सो द डायरेक्टर ऑफ ईडब्ल्यूसी सीरीज। स्वराज ने जितना एफर्ट डाला है भाई, सैल्यूट टू हिम आल्सो, अलॉन्ग विद ऑल द क्रिएटर्स। हम लोग क्रिएटर्स लोग को इतना कुछ नहीं है गाइस, हमको सिर्फ एक्टिंग करनी है, हमारा कुछ भी नहीं है इतना हर रोल। ये भाई सारा देखो, मैं इस पूरी ईडब्ल्यूसी की सीरीज को 40% पे देना चाहूंगा स्वराज को, ठीक है, वो बहुत एक्टिव है, ठीक है। 20% 30% और 40% मैं देना चाहूंगा, हाँ 40% मैं एडिटर्स को देना चाहूंगा, ठीक है। 10% मैं क्रू को देना चाहूंगा, जो सेटअप करते क्रू आता है हमारा वो, और 10% आई थिंक क्रिएटर्स का होगा, 10% बस, इतना सा है, कोई लीक वीक नहीं यार। कौन सा लीक दिया मैंने? And I see chat has been absolutely cheering for some of their favorite teams. Coming up next, it is all about AUL Esports. Let's go ahead and take a look at some of the rosters that they have for this year. बस भगवान किसी को भेज दो। अरे पर ये सब है कौन? ये बात तो हम हमारी दुनिया में स्पॉन ही नहीं हुए हैं। Indian powerhouse S8UL Esports is shaping up nicely on the road to the EWC, and joining us now on the show we have Animesh Agarwal. He is the co-founder of the organization. How are you doing today? Amazing, really great roster mania so far. Awesome. Well, we're glad that you're enjoying the show. But listen, I want to ask you, because S8UL Esports has had an emphasis on having higher Indian representation this year. Talk to me a little bit about your motivation behind that. I think India remains our home turf. The most important part for us as S8UL, as an org that's based out of India, remains to ensure that our homegrown talent grows across with time. I think having an emphasis on Indian talent is a long game, wherein we want to ensure that Indians start playing more games. We try to bring them world-class facilities and access that we have to the global esports ecosystem. But while I say that we have an emphasis on India, we're right now in 10 different countries, I think 10 plus. So can't really say that we are not doing it globally. But definitely being an Indian org, it remains very important for us to ensure local talent is given access to all sorts of possibilities and growth opportunity that we can bring to them. So I think it's a very simple funda for us this year. I got a chance to see the Indian talent when I was working on Call of Duty Mobile Championship. We saw Godlike, we saw S8UL having fantastic players in the past. You guys have a lot of stars in India, but tell me about the people on production. Who came up with this roster video? Who came up with such a unique announcement? That video was awesome. I think the team has been doing it for the last half a decade, 4 times content group of the year at the esports awards. So I think it definitely makes a lot of sense that we take efforts in how we release our rosters. I would say spicing it up the Indian way. The team has been doing it for quite some time now, and here we do it again. Hope everyone liked it though. Keep killing it. Well, I will ask you this final thing. What is one thing that we can expect from your squad in this year's EWC? I think a lot of surprises. I'm really banking on our squads this year, and then we have some under God bets, I would say. So I think S8UL is coming in packed, ready, and ready to surprise everyone, I guess. So not one thing, but many surprises. Many surprises. I feel like that's the best thing. It's expect the unexpected. And you can see some of our chat getting excited to share their fandom as well. But thank you so much for joining us, Animesh. It was fantastic speaking with you, and wishing you and your team the best of luck with EWC this year. Likewise. Thank you so much, guys. See you around. I am excited. It's always nice to see a little bit more representation, as he was kind of talking about. What's exciting. नॉक कहाँ दिया वो समझ नहीं आ रहा, वरना वो बताशा बन के चले जाता। वही सिंपल पर अरे लोग नेट करने जाते हैं ना हम दोनों, मैं और कौन गाइस रेडियस हो गए। मेरे पे नेट तो आजा तो तुम भी आ जाओ, आटा भी नो आ जाओ। दोनों टीम के दो ट्रेड है। हां आ जाओ दूर से पहले एक टीम डेड है। Watch out!
कॉल ना दे देना, फुल ग्राउंड फ्लोर पर हो रहा है। खत्म भाई, खत्म खत्म खत्म। Watch out! तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो भाई अभी मैं बूट कैंप आया था और जब मैं रास्ते में था ना तो मैंने देखा कि जो मेरी पिछली रिसेंट स्ट्रीमर वाली वीडियो है ना उस पे एक बंदे ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया है। अब मैं उस बंदे को 2 दिन से मेल कर रहा हूँ, वो बंदा कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। फिर कल मैं उसकी स्ट्रीम पे गया, मैंने उससे बोला कि भाई अगर आपको प्रॉब्लम थी पार्ट से तो आप मुझे मेल कर देते, आप इंस्टाग्राम पे कुछ मतलब मैसेज वगैरह कर देते, आप कॉन्टेक्ट तो करते एटलीस्ट। उस बंदे ने कोई कांटेक्ट नहीं करा, उल्टा वो कह रहा है कि भाई आपने मुझे डिसरिस्पेक्ट कर दिया इसीलिए मैंने स्ट्राइक मार दी। फिर मैंने बोला कि भाई मैं तो हमेशा बहुत पोलाइटली भाई स्ट्रीमर के पीओवी दिखाता हूँ, मैं कभी किसी स्ट्रीमर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। तो फिर वो बंदा पता है क्या बोलता है, कहता है कि भाई तुमने पैन मारा है। मैंने पीओवी जाके चेक करा, मैंने उस बंदे को एक बार भी पैन नहीं मारा। मैंने उसको 1v8 किया था, उसको मैंने एक बार भी पैन नहीं मारा। पता नहीं मतलब बंदा झूठ बोल रहा है, क्या ईगो हो जाता है भाई बंदों का हर्ट जरा जरा सी बातों पे। मतलब ये नहीं देख रहे कि भाई कोई बंदा इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा है। मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि भाई सभी लोगों को सपोर्ट करना, इतने सारे जो बाकी स्ट्रीमर्स है भाई उन लोगों को सपोर्ट भी मिलता है मेरी वजह से और सब लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट किसी बंदे का ईगो हट हो जाता है, वो पूरी वीडियो उड़वा देता है। भाई 1 महीना लगता है यार एक वीडियो बनाने में, स्ट्रीमर वाली इतनी मेहनत लगती है भाई, क्या बोलो यार। तुम ही लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कि किसी ने किसी को पैन मारा भी होता, वैसे मैंने मारा नहीं है उसको पैन, बट मान लो अगर मारा भी होता तो उस पैन के बदले क्या लॉजिक बनता है कि तुम उसको कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहे हो। भाई ये तो सिंपली भाई तुम कोई छोटी मोटे रीजन पकड़ के अपने चूतिया आपको जस्टिफाई कर रहे हो। और भाई मैं इतने अच्छे मन से आया था ना भाई बूट कैंप में कि भाई कंटेंट वंटेंट बनाऊंगा, लेकिन जब तुम किसी वीडियो पे 1 महीना मेहनत करो और कोई बंदा उसको कॉपीराइट का मिसयूज करके उड़ा देता है वीडियो को स्ट्राइक मार के, तो भाई मन ही नहीं करता यार वीडियो बनाने का। भाई तुम्हें स्ट्रीम करके बड़ा क्रिएटर बनना है, पर इतनी छोटी सोच के साथ कहाँ तक जा पाओगे भाई।